Hello student, today I am teaching you business studies for class 11th and this is your last chapter, international business. So in this chapter we will cover following topics like nature of international business, advantages of international business, disadvantages, export trade, import trade and world trade organization. So first of all, let me discuss the meaning and nature of international business. So international business refers to those business activities that take place beyond the geographical limits of a country. तो इंटरनेशनल बिजनेस ऐसी एक्टिविटी है जो हम अपने पर्टिकुलर कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर डीलिंग करते हैं. It involves not only the international movements of goods and services but also of capital, personal technology, intellectual property like patents, trademark, know-how and copyrights. Okay, so all these things also we along with the goods and services इनका भी internationally movement होता है. In the word of Roger Bennett, international business involves commercial activities that cross national boundaries. Okay. Then in the other writer's word, international business consists of transactions that are devised and carried out across national borders to satisfy the objectives of the individuals, companies and organization. इंडिविजुअल के, कंपनीज के, ऑर्गेनाइजेशंस के जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है. दीज ट्रांजेक्शन टेक ऑन वेरियस फॉर्म्स विच आर ऑफन इंटर रिलेटेड. ओके, जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. द मेन फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आर एज फॉलोज. Involvement two countries. International business is possible only when there are transaction across different countries. तो involvement of two countries का मतलब है कि जब दो countries का involvement होता है तब international business होता है. मतलब international business में दो country का involvement होना ज़रूरी है. Second, use of foreign exchange. तो इसमें जो currency use होती है, every country has its own different currency. This gives rise to the problem of exchange of currency as foreign currency is used in making transaction. तो foreign currencies में use होती है. Legal obligations. Each country has its own laws regarding foreign trade which have to be compiled with. Further, there is a more government interventions in case of international transactions. ठीक है, obligations ज़्यादा होती हैं, legal rule and regulations ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंट्री के साथ डीलिंग नहीं हो रही है, दो कंट्री के आपस में डीलिंग हो रही है. नेक्स्ट, हाई डिग्री ऑफ रिस्क. इंटरनेशनल बिजनेस फेस ह्यूज रिस्क ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस. सो रिस्क ऑफ फ्लैक्चुएशन इन टू करेंसीज, फेयर ऑफ ऑब्सोलेंस एक्सेट्रा. तो ज़्यादा इसमें रिस्क के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग. The time gap between sending and receiving of goods and payment is wider as compared to the inland trade. तो inland trade में तो हम अपने ही कंट्री के जोग्राफिकल एरिया में डीलिंग कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम, उसमें कम टाइम लगता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को डिस्पैच करना है. ठीक है, रिसीविंग होनी है, परचेजिंग होनी है. देन लेक ऑफ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट. सो इट लेक डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर. तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में एक डायरेक्ट जो लिंक होता है वो नहीं हो पाता जैसे कि इंटरनल डोमेस्टिक ट्रेड में होता है. ठीक है, नाउ रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्यों किया जाता है. बिकॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हर पर्टिकुलर कंट्री में कहीं पे कम होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं, तो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है. सो ऑल द कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वल वेल और चीपर ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अमंग देम और डिफरेंसेस इन देयर प्रोडक्टिविटी लेवल्स. सो एज अ रिजल्ट दे एक्सचेंज देयर सरप्लस प्रोडक्शन विद गुड्स दैट दे आर इन शॉर्ट सप्लाई इन देयर कंट्री. तो हम कह सकते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज के कारण इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है. सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल्स नीडेड for producing different goods and services differ among nation.
तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस किया जाता है, रॉ मटेरियल और लेबर का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, ताकि सिर्फ अपने ही कंट्री के पीपल को बेनिफिट ना प्रोवाइड किया जाए, इंटरनेशनली भी उसको बेनिफिट कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट क्या रीज़न है, या हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में अगर वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल नहीं है या लेबर की कमी है या कोई टेक्निक का हमारे पास कोई अच्छी टेक्निक नहीं है, तो हम दूसरी कंट्री से टेक्निक को खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, लेबर्स को हायर करते हैं, तो दैट्स वाई वी आर डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। देन स्पेशलाइजेशन, सो some countries specialize in the production of goods and service for which they have some advantages like advanced technical know-how, high labor productivity, suitable climate conditions etc. तो स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जो भी हमारे पास गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका और ज़्यादा उसको एडवांस करने के लिए हमें नई टेक्निक की ज़रूरत होती है, ठीक है, हाई लेबर प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत होती है, सूटेबल क्लाइमेट कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो अगर ये हमारे पास नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको इंटरनेशनली हायर करें। लाइक वेस्ट बंगाल स्पेशलाइज इन जूट प्रोडक्ट, तो जैसे वेस्ट बंगाल अपने आप में जूट का प्रोडक्शन करने में स्पेशलिस्ट है, तो यहाँ का जो जूट है वो सप्लाई किया जाता है इंटरनेशनली, ओके। देन कॉस्ट बेनिफिट्स, सो प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर इन डिफरेंट कंट्रीज ड्यू टू डिफरेंट इन सोशो इकोनॉमिक, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट गेट करने के लिए भी हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। सम कंट्रीज आर इन अ बेटर पोजीशन टू प्रोड्यूस सम गुड्स मोर इकोनॉमिकली देन अदर कंट्रीज, कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो उसी प्रोडक्ट को सही दाम पे चीपर रेट में प्रोड्यूस कर पाती है और कुछ कंट्रीज उसको चीपर रेट में प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो जिन कंट्रीज को जो थोड़ा सा पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पे चीपर रेट में गुड्स को वो परचेस करते हैं, तो ऐसी कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल बिजनेस एक बहुत ही बेस्ट तरीका है टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। सो एज अ रिजल्ट firms engage in international business to import what is available at lower price in other countries and export goods on which they can fetch better prices, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में ये कोशिश किया जाता है कि जिस पर्टिकुलर कंट्री में उस कॉमोडिटी का प्राइस कम है वहाँ से उसको खरीदा जाए, इंपोर्ट किया जाए, ठीक है। नाउ डोमेस्टिक बिजनेस वाइज इंटरनेशनल बिजनेस, these are the major points which makes a difference between these two. So first of all, first basis is nationality of buyers and seller. अब domestic business की अगर हम बात करें तो both buyers and sellers belongs to same country. It makes easier for both the parties to understand each other and enter into business deals. तो ये है आपका डोमेस्टिक बिजनेस, इसमें दोनों ही जो बायर एंड सेलर हैं वो एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिर अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे जो बायर एंड सेलर हैं ये दोनों डिफर कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनका लैंग्वेज, इनका एटीट्यूड, कस्टम ड्यूटीज, एवरीथिंग इज डिफर। नेक्स्ट, नेशनलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। अब डोमेस्टिक बिजनेस में अगर हम बात करें तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो सभी एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनका लैंग्वेज सेम होता है, उनका सिस्टम सेम होता है, उनका बिहेवियर सेम होता है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में इसका अपोजिट होता है, डिफरेंट कंट्री से आप डीलिंग कर रहे हैं, सो यू फाउंड डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट एस्पिरेशंस, वैल्यू सिस्टम्स, ओके। नेक्स्ट, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे जो एक गुड्स दूसरी जगह पर सप्लाई हो रहा है वो अपनी ही कंट्री के अंदर होता है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में लीगल रिस्ट्रिक्शंस इज नीडेड एंड वेरिएशन इन सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर है नेचर ऑफ कस्टमर्स। तो डोमेस्टिक में अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस, कंजम्पशन पैटर्न, बाइंग बिहेवियर, एवरीथिंग, टेस्ट, एवरीथिंग इज एज सिमिलर, बट इन इंटरनेशनल बिजनेस these are therefore like language, preference of the customers, okay. Then business system and practice, so they are relatively more homogeneous with the country, and in international business the less homogeneous due to difference in developmental level, infrastructure facilities and market support services. Political system and risk की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक बिजनेस फर्म आर फेमिलियर विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ देयर कंट्री। यहाँ पे अगर डोमेस्टिक बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पीपल हैं वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम से वेल अवेयर होते हैं, ठीक है। बट अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करें तो वहाँ की जो पर्टिकुलर
गवर्नमेंट है उससे हम इतना फैमिलियर नहीं होते, हमें वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में नहीं पता होता. देन बिजनेस रूल एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज. तो डोमेस्टिक बिजनेस में रूल एंड रेगुलेशंस ज़्यादा है, डोमेस्टिक बिजनेस में कम है, क्योंकि और हम रूल एंड रेगुलेशंस हमें पता है कि क्या है. टैक्सेशन पॉलिसीज वी नो बिकॉज वी बिलोंग्स टू द सेम कंट्री, सिंगल कंट्री. बट इन इंटरनेशनल बिजनेस इट इज़ सब्जेक्ट टू रूल, लॉज, टैक्सेशन पॉलिसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज. वहाँ पे वेरियस कंट्रीज के टैक्स पॉलिसीज हमें फॉलो करने पड़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में. करेंसी यूज़ की अगर हम बात करें, अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं तो डोमेस्टिक करेंसी का यूज़ होता है. इंटरनेशनल बिजनेस अगर हम करते हैं तो उसमें हमें एक या दो कंट्री से ज़्यादा की करेंसी यूज़ होती है. रिस्क की अगर हम बात करें तो इट इन्वॉल्व्स कंपैरेटिवली लेस डिग्री ऑफ रिस्क, एंड इन इंटरनेशनल बिजनेस इट इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ रिस्क. Then order processing time. So there is a less time gap in order and supply of goods, and in international business there is a wide time gap between order and supply of goods. So this much is about in this chapter. In my next video I'll explain advantages of international business. Thank you and have a nice day.